بھائی صاحب، فیاض خان صاحب، فیروز ماڈل صاحب، محسن پیر صاحب، انس صاحب اور محبان مجلس اتحاد المسلمین، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلدی انتخابات کا اچانک اعلان آیا ہے کہ اعلان اچانک آ کر 1 دسمبر کو الیکشن ہے، تاریخ طے کی گئی ہے، جبکہ اس کونسل کی میعاد 2021 فروری تک تھی، لیکن حکومت کے مشورے پر الیکشن کمیشن نے صرف 6-7 دن 8 دن کے اندر، نامنیشنز کے فوری 6-8 دن کے بعد الیکشن ہو جانا 8 دن کے اندر، اتنا کم ٹائم دے کر الیکشن کا اعلان کر دیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے 8 دن بہت ہے، ہم کو ایک ہی دن کافی ہے الیکشن کے لیے۔ آج الیکشن کا اعلان اگر کل ہے بول کر آتا ہے تو مجلس کے تمام سپاہی تیار ہے اس الیکشن کے لیے۔ آپ نے دیکھا 2018 کے اندر اسمبلی کے انتخابات ہوئے، اسمبلی کے انتخابات کے اندر ستمبر 2018 میں اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو دسمبر 2018 کے اندر الیکشن کی تاریخ آئی، تو کیمپیننگ 3 مہینے سے زیادہ ہم نے کیمپیننگ کی۔ وہ کیمپیننگ کرنے میں بھی مجلس اتحاد المسلمین ماہر ہے۔ آپ 10 دن کا ٹائم دیتے ہیں تو ہم اس میں بھی ماہر ہیں، آپ 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں تو ہم اس میں بھی ماہر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اس الیکشن کے فوری 4-6 مہینے میں پارلیمنٹ کا الیکشن آیا۔ پارلیمنٹ کے الیکشن سے فارغ ہوئے کہ اضلاع کے اندر بلدی انتخابات آ گئے۔ اضلاع کے بلدی انتخابات ختم ہوئے تو کرونا وائرس آ گیا۔ کرونا وائرس ختم ہوا تو بارش سے سیلاب آ گیا۔ ابھی ختم نہیں ہوا کرونا وائرس، وہ چل ہی رہا ہے، بارش سے سیلاب آ گیا۔ سیلاب چل رہا ہے، بہار میں الیکشن جا کر لڑ کر ہے۔ تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، ہم برس کے 12 مہینے 24 گھنٹے عوام کے درمیان میں رہنے والے ہیں اور عوام کے پاس کبھی بھی جا کر ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ہم عوام کے درمیان میں رہ کر الیکشن لڑتے ہیں، ہم فیس بک پر رہ کر الیکشن نہیں لڑتے یا عوام کی خدمت نہیں کرتے، ہم بذات خود عوام کے درمیان میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس وقت کرونا کا ٹائم آیا، بڑے بڑے لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، کوئی لیڈران تو سب سے پہلے غائب ہو گئے تھے۔ عوام تو پھر بھی بے چین ہو رہی تھی، لاک ڈاؤن میں کب تک گھر میں بیٹھنا، عوام باہر نکلنے کو بے چین تھی، لیکن جو عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو لیڈرز کو، جو عوام نے ان کو ووٹ ڈال کر ان کو فالو کر کر جتایا، وہ عوام کی مدد کے لیے درمیان میں کوئی نہیں آ رہے تھے۔ اس ٹائم کے اوپر چاہے وہ وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو، آپ کے درمیان میں رہنے والے کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انتخابات سے پہلے، اس بلدی انتخابات سے پہلے 2009 میں جب بلدی انتخابات ہوئے تھے تو ایک کارپوریٹر کو سالانہ 1 کروڑ روپے کا بجٹ تھا۔ تو تمام کارپوریٹرز کوئی بجٹ استعمال کرے، کوئی بجٹ استعمال نہیں کرے، لیکن 2016 میں جب بلدی انتخابات ہوئے تو اس وقت 1 روپیہ بھی کارپوریٹر کو بجٹ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی یہاں پر اعظم پورہ ڈویژن کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ بلدی کے کام ہم نے کروائے ہیں، برقی آبرسانی کے کام ہم نے کروڑوں کے کروائے ہیں۔ آج سیلاب کے اندر جتنے بھی ہماری بستیوں کے اندر متاثر ہوئے تھے، تمام کے تمام بستیوں کے اندر ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ جو مجلس نے نمائندگی کی تھی، مجلس نے مطالبہ کیا تھا کہ اس سیلاب کے اندر حکومت اگر چاول دے کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی ہے تو نہیں ہوگا،
हुकूमत को माली इमदाद करना पड़ेगा। मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने माली इमदाद का क्या सपोर्ट का ऐलान किया, उसके अंदर भी मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आजमपुरा डिवीजन के अंदर 5,000 से ज्यादा घरों को हमने पैसे दिलाए। मलकपेट के अंदर 20,000 घरों को हमने पैसे दिलाए और बाकी है, और बहुत से बाकी है जो घरों में पानी आया था और जो मुस्तहिक है हम सबको दिला रहे हैं, और जो बाकी बचे हैं 5 तारीख के बाद हुकूमत खोलती है तो तमाम को भी हम लड़कर हुकूमत से दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल आपके वोट से जाकर हम पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की और मजलूमों की नुमाइंदगी करते हैं। आप चुनकर हमको असेंबली में भेजते हैं तो अपने मसाइल आपके चुने हुए वोट से जाकर हम असेंबली के अंदर हर मसाइल के ऊपर आपकी नुमाइंदगी करते हैं, काउंसिल के अंदर आपकी नुमाइंदगी करते हैं। ये ऐवानों से हटकर भी अगर से जमीन के ऊपर, रोड के ऊपर भी किसी किस्म की तकलीफ आती है तो आपके बीच में रहने वाली जमात का नाम सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज सब लोग सांस बांट कर किस तरीके से मजलिस के वोट काटा जाए, किस तरीके से क्या किया जाए, सिर्फ ये मंसूबों के अंदर है। अवाम की हमदर्दी, अवाम के लिए क्या काम किया जाए, ये किसी को फिक्र है ना किसी को वो पड़ी हुई है। अवाम के दरमियान में एक मलकपेट के अंदर एक गुलदस्ते का माहौल बनाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेकर चल रही है। और जिस वक्त इस सैलाब से यहाँ पर ना सिर्फ सैलाब, ना सिर्फ बारिश, अगर से मलकपेट के अंदर बारिश भी नहीं होती है, अगर ऊपर कहीं बारिश होती है तो तमाम ऊपर से पानी, जैसा परसों बारिश के बाद बालापुर का तख्ता टूटा, जबकि मलकपेट के अंदर खतरा बारिश नहीं थी, लेकिन ये पूरे अतराफ और कनाफ के इलाकों के अंदर पानी आ गया था। उसकी वजह यह है कि वो तमाम पानी आके हमारे ही नाले से मूसा नदी में जाता है। तो बारिश नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर ये तकलीफ है, उसकी वजह से मजलिस ने नुमाइंदगी की है। इंशाअल्लाह ताला नाले को लगकर इसी आजमपुरा डिवीजन में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बॉक्स ड्रेन बनाया जाएगा जो जाकर मूसा नदी के अंदर मिलेगा इंशाअल्लाह। आपने देखा कि बारिश की वजह से यहाँ पर वार्ड ऑफिस के पास ब्रिज टूट गया था, ब्रिज के अंदर सुराख पड़ गया, ब्रिज पोशीदा हो गया। इमीडिएटली इतने कम दिनों के अंदर मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी की, सैंक्शन किराया टेंडर हो गया, 2 करोड़ रुपए से नया ब्रिज तामीर भी स्टार्ट हो गई वहां पर। तो बहरहाल मेरा आपसे ये तमाम चीजें कहने का मकसद ये है कि हम अवाम के दरमियान में काम की बुनियाद के ऊपर आते हैं, ना कि किसी के ऊपर तनकीद करने की वजह से, ना किसी के ताल्लुक से गैर गलत बोलने की वजह से, ना कोई 30 मार खा है बोलने की वजह से। सिर्फ काम है तो मजलिस है, मजलिस सिर्फ काम करना जानती है। आपने पिछले 5 साल के अंदर ऐसे हालात के अंदर अबरार ने आपके दरमियान में रहकर, चाहे वो लॉकडाउन हो या ये बारिश से मुतासिर होने से इलाके हो, हर इलाके के अंदर जाकर उसने काम किया। अगर वो काम 100% तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कोताही कमी हर किसी में रहती है। कई जगह काम किए, कई जगह काम बाकी भी होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आपके साथ मिलकर उस कमियों को दूर करते हुए वो भी काम इंशाअल्लाह मुकम्मल तकमील को पहुंचाए जाएंगे। मैं बहैसियत आपके रुकने असेंबली ये आपसे कह रहा हूं कि तरक्याती कामों के अंदर ना हमने कभी खामोश बैठा, ना कभी हमने सुस्ती की, ना की जाएगी। अभी भी आजमपुरा डिवीजन के अंदर करोड़ों रुपए का काम सैंक्शन होकर है। हम हर मसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, हर चीज पे काम कर रहे हैं। मुत्तहिद रहिए, इत्तेहाद के साथ रहिए। 2018 के इलेक्शन के अंदर भी ऐसी वबा का माहौल बनाकर रखे थे, लेकिन आप 2018 के इंतखाबात का रिजल्ट उठा के देखिए, इसी आपके इस एमएलए को इसी आजमपुरे की आवाम ने 11,000 से ज्यादा वोट देकर कामयाब करवाया। तो ये आपका इत्तेहाद है, आपकी मोहब्बत है, और मोहब्बत जब ही परवान चढ़ती है जब आपके चुने हुए नुमाइंदे आपकी उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं और काम करते हैं। हमने काम किया है और हम आपके दरमियान में रहकर काम करेंगे। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 1 तारीख के रोज
पहली सुबह अव्वलिन वक्त निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। आपको ज्यादा देर लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं। आपके एक फोन पर आपका कारपोरेटर, आपका एमएलए आपके दरमियान में आ सकता है। तो इलेक्शन के लिए एक दिन आप 15 मिनट निकालकर पोलिंग बूथ को जाइए। आपको और लाइनों में भी ज्यादा देर ठहरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले जो 1400, 1200, 1300 के वो पोलिंग बूथ हुआ करते थे, आज तमाम पोलिंग बूथ 800, 700, 900 के अंदर है तमाम पोलिंग बूथ। आपको ज्यादा देर लाइन में भी नहीं ठहरना पड़ेगा। और बैलेट पोलिंग है, मिशन की नहीं है। आप लीजिए और पहली तारीख को पहले नंबर पर अबरार और कैंडिडेट का नाम आयशा जहां नसीम है। आयशा जहां नसीम कैंडिडेट का नाम है, पहले नंबर पर है। पतंग का निशान पहले नंबर पर है। पहली तारीख को निकलिए, पहले नंबर पर मोहर लगाकर मजलिस को कामयाब कीजिए। मजलिस आपकी जमात है, आपके दरमियान में रहकर हमेशा काम करते रही है और आपके दरमियान में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। एक गुलदस्ते का माहौल बनाकर तमाम तबकात को यहां पर, वरना मलकपेट का एक माहौल बना दिया था कि फिरका बीजेपी एक फिरका परस्त ताकत बनकर सिर्फ किस तरीके से दो कम्युनिटियों को बांटकर मजलिस को फिरका परस्त कहने वाले हमेशा मलकपेट के ऊपर फिरका परस्ती के जरिए राज करते रहे। लेकिन 2009 में जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने यहां से कामयाबी हासिल की तो हर तबके की नुमाइंदगी की, हर तबके हर गली के अंदर काम कराया और हर गली के अंदर काम कराएगा। मजलिस ने यह नहीं सोचा कि फलाना ने हमको वोट नहीं दिया, उसके इलाकों में काम क्यों कराए। जब मजलिस का यहाँ पर एमएलए नहीं था, दूसरी जमात के एमएलए यहाँ पर भटकते भी नहीं थे, लेकिन मजलिस हर गली के अंदर जाकर काम करे और काम कराते रहेगी। मजलिस तरक्की के नाम के ऊपर और हर जगह के ऊपर बुनियादी मसाइल के ऊपर काम करती रही है। मैं आपसे यही कहूंगा कि पहली तारीख के रोज निकलिए, अपने एक एक वोट को इस्तेमाल कीजिए, अपनी माँ बहनों को लेके निकलिए। मैं चिट्स पहुंचाने की आपके जिम्मेदारी जीएचएमसी की है, लेकिन हम हमारी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके घरों के ऊपर चिट्स पहुंचाई जाए। हर एक को यह पता चले कि उसका वोट कोसी पोलिंग बूथ में है। वो चिट्स लेकर, आईडी प्रूफ लेकर जाइए, अपने वो पोलिंग बूथ को जाइए, वहां पर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ का इलेक्शन ऐलान होने से पहले हम बिहार में थे। बिहार के अंदर अगर से 10 से 15 किलोमीटर भी दूर जाना है, कार के अंदर भी अगर आप सफर कर रहे हैं तो 1.5-2 घंटे का सफर होता था। कार के अंदर भी अगर आप 15 से 20 किलोमीटर जाना है। यहाँ तो हमारे कोई तकलीफ नहीं है, हमारे घरों के पास है। पोलिंग बूथ के अंदर वोटर्स की मकदार कम की गई है और इस टाइम के ऊपर आप बता सकते हैं 90% पोलिंग कराकर। मैं आपके और हमारे दिलों, आपके और हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब का इस जलसे में इस्तकबाल करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अब मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से इल्तिमास करता हूँ कि जलसे को मुखातिब करें। बैठो